لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید۔ حزب اللہ نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ نعیم قاسم حزب اللہ کے نئے سربراہ مقرر، حزب اللہ نے اعلان کر دیا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید۔ حزب اللہ نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی بیروت میں کثیر المنزلہ عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ اور اہم کمانڈر علی کرکی بھی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق نعیم قاسم حزب اللہ کے نئے سربراہ ہوں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے لبنان میں حزب اللہ کے 140 اہداف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل پر بھرپور راکٹ حملے، صفات، کرمیل اور سار قبوطس شہروں پر 65 راکٹ فائر کیے۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ خامنائی کو ایران میں ہی اضافی سیکیورٹی کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی مسلم ممالک سے متحد ہو کر اسرائیلی بربریت کے خاتمے کا مطالبہ، کہا خطے کے مستقبل کا فیصلہ مسلم ممالک کے ہاتھوں میں ہے، تمام مسلم ممالک لبنان اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں امریکی بنکر بسٹر بم استعمال کیے، ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے امریکہ کا بیروت حملے میں کوئی عمل دخل تھا نہ شراکت۔ امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا، کہا اسرائیل اور حزب اللہ کشیدگی پر مشرق وسطیٰ میں اضافی افواج بھیجیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس وقت خطے میں امریکہ کے تقریباً 40,000 فوجی موجود ہیں۔ حسن نصر اللہ 22 سال کی عمر میں حزب اللہ کا حصہ بنے، 32 سال کی عمر میں مزاحمتی تنظیم کی قیادت سنبھالی، 31 سال تک اسرائیل کے خلاف طاقتور مزاحمت کی علامت بنے رہے۔ ان کی سیاسی حکمت عملی کے تحت حزب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کا بھی حصہ بنی رہی، ملک میں اسکولوں، اسپتالوں اور خیراتی اداروں کا وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا۔ 2002 میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے بعد قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا۔ حسن نصر اللہ عراق اور یمن میں ملیشیا کی حمایت کرتے تھے۔ پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان کی خوشحالی بارے کبھی امید نہیں چھوڑنی۔ 1 سال پہلے کہا تھا مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو شکست دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ سپاہ سالار نے کہا مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ تاجر برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت۔ شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کمپنی کا چارٹرڈ ہیلی کاپٹر کریش، 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی۔ ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 غیر ملکی روسی پائلٹس اور کرو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ ہیلی کاپٹر شیوا آئل فیلڈ کے نزدیک اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ پر کریش کر گیا۔ حادثہ انجن فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ سپریم کورٹ پنجاب الیکشن ٹریبیونلز کیس کا فیصلہ 30 ستمبر کو سنائے گی۔ سپریم کورٹ نے منگل کو سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز فعال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں۔ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کے ماتحت انتظامی افسران کو بطور ایگزیکٹو مجسٹریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق جوڈیشل اختیارات کا استعمال صرف آئین کے آرٹیکل 175(3), 202 اور 203 کے تحت ہی ہوگا۔
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, तालीम, सेहत, शहरी सहूलियात के लिए जापान का पंजाब से ताउन लायक तहसीन है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रावलपिंडी सील। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में रेंजर्स भी तैनात। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी शहर में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। एक्सप्रेस वे फैजाबाद के मकाम पर जुज़वी तौर पर ब्लॉक। पीर बधाई जाने वाला रास्ता गाड़ियों के लिए बंद। फैजाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। मरी रोड से मिलाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में आज होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया। चंद अनासर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। PTI वाले NRO चाहते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। लाहौर का जलसा लाहौर में मुस्तरद। रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा सेफ सिटी कैमरे की वीडियो, लोकेशन और वक्त के साथ आवाम का मरियम नवाज पर एतमाद और अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन है। इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से पंजाब पर किसी को चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देंगे। ये एहतजाज की आड़ में शरपसंदी चाहते हैं। क्या कोई जमात असलहा लेकर भी जलसे करती है? पंजाब पुलिस को फसाद फैलाने वालों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जेल में बैठे फितने को आवाम का सुकून अच्छा नहीं लगता। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, कुछ अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करें। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील नैब के आखिरी गवाह पर जिरा 2 अक्टूबर को भी जारी रखेंगे। उधर बानी पीटे रहलिया के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इशाइये में दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी शरीक। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। टैरिफ को यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं कि महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम किया जा रहा है।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में सयाहत के फ़रोग के लिए सरगर्म, पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी की क़याम, डिज़ाइन और जामे प्लान की तजावीज़ तलब कर ली। 25 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब स्टेयरिंग कमेटी के कन्वीनर होंगी। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहले फ़लस्तीन का मुकदमा शानदार तरीके से पेश किया, हर पाकिस्तानी के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा भी ज़ोरदार तरीके से पेश किया। गर्मी को बाय बाय, ठंड ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में अल सुबह बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया। गुजरावाला, डस्का, फैसलाबाद, पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तेज़ हवाएं चलने से चावल की फसल को नुकसान। दीरलोर में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तोग़यानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इसराइल की ग़ज़ा में बमबारी थम न सकी। वहशियाना बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में सेहूनी फ़ौज और हमास के दरमियान झड़पें, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने नसीरात और मग़ाज़ी के इलाकों को निशाना बनाया। मग़रबी किनारे में मुतअद्दिद मक़ामात पर छापे, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ती तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव ने कहा मशरिक़ वस्ती एक बार फिर बड़ी जंग के धाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं ऐसा होकर रहे। मूडीज़ ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग में मज़ीद कमी कर दी। जंग बंदी होना चाहिए ताकि आम फ़लस्तीनी लोगों तक ज़रूरी इंसानी इमदाद पहुँचा सकेगा। जनूबी लुबनान से मशरिक़ वस्ती में जंग बंदी का वक्त आ चुका। फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मार्गरेट मैकलाउड की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बाहमी बातचीत से मसला कश्मीर हल करें। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी पार्टनर है। पाकिस्तान IMF के इस्लाहात पर अमल करके दुनिया भर से सरमायाकारों को राग़िब कर सकता है। सऊदी अरब के शहर दमाम में खूबसूरत एयर शो, मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद की शिरकत, शुरका खूब महसूस हुई। और सुरों की देवी बुलबुल हिंद लता मंगेशकर ने जो गाया अमर कर दिया। 50,000 के करीब गीत गाए, हर गाना सुपरहिट हुआ। लता के गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। दुनिया भर से मदाह, लता मंगेशकर की सालगिरह नहीं भूले।